हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है, मैं अवदान आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। आई होप आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अपना पूरा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने अभी यूपीएससी अटेम्प्ट किया है प्रीलिम्स 2020 विच वॉज अ रिलेटिवली मॉडरेट टू टफ लेवल एग्जाम, और अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं तो आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। So today's video is not for those who are writing their mains, who would be writing their mains rather I would say. This is going to be a beginner's guide for all those students who want to appear for UPSC, specifically focusing on prelims 2021. But अगर आप लोग already preparation कर रहे हैं तो this can be a help to you for sure. आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा about the syllabus, आप कौन सी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो. So this is the main intent of this video today. And अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके साथ साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, और उन सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनको थोड़ी भी गाइडेंस की जरूरत है फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट। So in today's video, I'm going to clear all the doubts and confusions regarding the UPSC attempt and qualifications and syllabus, the sources, कहाँ से आपको सारा content मिल सकता है, आपको कहाँ से पढ़ना है, focusing specifically on UPSC, correct? So let's begin with the qualifications and number of attempts section. सबसे पहला question जो दिमाग में आता है, what is the minimum qualification to appear for UPSC? सो आईएएस एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज एनी डिग्री, बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर बैचलर किया हुआ है या फिर आप कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू शुड बी 21 years of age. This is the basic qualification required. Now let's come to the number of attempts for this exam. So for general category we have 6 attempts till the age of 32 years, correct? Starting from 21 till the age of 32 you can attempt UPSC exam, लेकिन number of attempts जो आपको मिलेंगे if you belong to a general category it's going to be 6. Next is for OBC candidates it's going to be 9 attempts till the age of 35 years, correct? For students belonging to scheduled caste and scheduled tribes category, the attempts are unlimited but till the age of 37 years. This is the number of attempts that an aspirant gets. Now, what is the prelims pattern? If you are a beginner, this is going to be a beneficial video for you. So for prelims, we see that the prelims is divided into two parts. It is General Studies Paper 1 and General Studies Paper 2, which is basically, you can call it a CSAT exam, which is maths, reasoning, aptitude and everything. This paper is qualifying in nature. इसको आपको सिर्फ qualify करना है with 33% marks, correct? But General Studies Paper 1, this is the paper which gives you your cut-off marks. Let's start. Now, let's understand General Studies Paper 1, correct? What all are there? What are the sections that General Studies Paper 1 covers and all those things. So, there are in total 100 questions in this paper with 200 marks, right? With 1/3 negative marking. Now, UPSC deals in negative marking. For every wrong question, 1/3 negative marking is there, correct? And for every right answer you get 2 marks. So basically 100 questions, 200 marks with 1/3 negative marking is the way this exam is conducted. Both the papers. But paper 2 it has 80 questions, not 100 questions. Paper 2 I'm not focusing right now because it's a qualifying exam. Maths, aptitude, comprehension, reasoning and everything. Now what does this paper covers? What are the topics that are covered in paper 1? It has history, Indian polity, geography, both India and world, physical geography, science and technology. You have your economics, IR, ecology, environment, current national and international issues,
social and economic planning, art and culture of India, and there are certain miscellaneous topics that are covered in this particular paper, right? This is the area जहां से बहुत सारे questions आपको पूछे जाते हैं. तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं that I'm going into अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को. आई गेस आप सबको ये समझ में इजीली आ जाना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ द टॉपिक्स वन बाय वन विद देयर रेलेवेंस एंड देयर सोर्सेस. आप कहां से उनको पढ़ सकते हो, उनका कितना इंपॉर्टेंस है. लेट्स बिगिन विद द करंट इवेंट्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. So this particular section, I've taken it at number 1, if you see, is the most important section for UPSC CSE. बहुत ज़्यादा important है. कुछ questions तो बिल्कुल they come with the explicit taglines also. Like dash 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 was recently in news. What was recently in news? सीधे सीधे पूछ लेते हैं. It can be anything. आपको regular current affairs पढ़ने होते हैं और आप ये देखिए कि क्या स्पेशल चीज है जो न्यूज में रेगुलर चल रही है. दे कैन गिव यू एनी नेम एंड आस्क दिस वाज इन न्यूज रिसेंटली इन द न्यूज, व्हाट इज दिस. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. सो एन एस्पिरेंट इज एक्सपेक्टेड टू कवर एटलीस्ट 12 months करंट अफेयर्स प्रायर टू द एग्जाम. मिनिमम 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होता है. यू जस्ट कैनॉट स्किप द करंट अफेयर्स एटलीस्ट 1 year. अगर जून में एग्जाम है, जून 21 में एग्जाम है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 2020 टिल जून 2021, राइट. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट नोट टू दैट करंट इवेंट सेक्शन ओवरलैप्स विद आवर कोर सब्जेक्ट्स. यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि बहुत सारी चीजें जो हम करंट इवेंट्स में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली ओवरलैप करती हैं आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स. जो क्या करता है करंट अफेयर सेक्शन इन स्टैटिक सेक्शन में क्या करता है, इट एड्स द डायनेमिक पार्ट ऑफ द पेपर जो एवर चेंजिंग है. एनवायरमेंट इकोलॉजी में कुछ हुआ है, कुछ रीसेंट डिस्कवरीज हुई हैं, कोई इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं, कोई पैक्ट्स हुए हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो वो एनवायरमेंट का सेक्शन भी है, कम्स अंडर द करंट अफेयर सेक्शन ऑल्सो. ज्योग्राफी में कुछ कोई एरिया स्पेसिफिक कुछ नई चीजें आई हैं, या लोकेशंस जहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स या हमारे पीएम या हमारे प्रेसिडेंट विजिट कर आए हैं, इस तरह की जगहें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. या कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, यहाँ अर्थक्वेक्स आए हैं, इस तरह के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये करंट अफेयर में भी कवर किए जाते हैं. एक्सक्यूज मी. उसके अलावा पॉलिटी में व्हाट इज लेटेस्ट इन द न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स आए हैं, किस स्पेसिफिक अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ आया है तो उसमें क्या है, ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंजेस हुए हैं. ऑल दोज थिंग्स मेक द डायनेमिक पार्ट ऑफ दीज कोर सब्जेक्ट्स. सो यू हैव टू always understand that you have to overlap the current affairs with your core subjects also regarding the topics. Correct? Next, apart from these dynamic areas, there are news related to national and international importance as well. जैसे कि क्या क्या हो सकती हैं वो, I'll just tell you. The economical changes and the latest policies. This is again important. ये वो एरियाज हैं, वो तो डायनामिक एरियाज हमने देखा कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट उसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उनसे रिलेटेड न्यूज जो है. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चेंजेस, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, साइंस टेक में कुछ नए चेंजेस आए हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अगर कुछ हुए हैं विद रीसेंट जजमेंट्स एंड एवरीथिंग. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, राइट, These policies are also important. जो भी गवर्नमेंट नई स्कीम्स या पॉलिसीज लेकर आती है, किस सेक्टर को वो केटर करती है, किस सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली वो बनाई गई है, ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. देन न्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, समिट्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू विच इंडिया हैज अ कनेक्शन. जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, समिट्स हुए हैं जहां पे, या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन है, is important for your exam, right? This you have to cover in your current affairs section. Now, what can be the sources for this? The sources can be any standard daily newspaper. अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ सकते हो. आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हो, या कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो. मैगजीन्स लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्र,
very important. They're going to help you in your not just current affairs for prelims but also for your mains. आंसर राइटिंग, एक्सक्यूज मी, एसेज में हेल्प करेगा आपको ये. उसके अलावा गवर्नमेंट वेबसाइट्स लाइक पीआईबी एंड विकासपीडिया, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर योर करंट अफेयर्स. यहां से आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स, लगभग सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. नाउ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 facets. One is your ancient history, prehistoric to mid 18th century, then medieval history, mid 8th century to 18th century. It's 8th century, sorry, no, it's not 18th century, friends, it's mid 8th century, correct? From mid 8th to 18th century is your medieval history, and then modern and Indian national movement, mid 18th century onwards, and also after the freedom, right? After 1947 की जो भी है post independence history जो है वो section भी थोड़ा बहुत आ जाता है. Now next, you have to have more focus on ancient and medieval modern history. Medieval बहुत ज्यादा questions exam में recent time में देखा गया नहीं आते हैं. कभी कभी they pick up questions and ask questions. You cannot ignore. लेकिन हाँ, जो medieval वाला section है और जो ancient का section है उसमें आपका art and culture जो है that is very important. आप उसको ignore नहीं करोगे, right? So मेजर फोकस जो होना चाहिए वो आपका एंशिएंट और मॉडर्न पर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आर्ट एंड कल्चर आप मिडीवल का भी कवर करोगे. तो आपका आर्ट एंड कल्चर में मिडीवल का सेक्शन कवर हो जाता है जहां से वो जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं, करेक्ट? नाउ इन एंशिएंट हिस्ट्री मोर फोकस टू बी गिवन ऑन दी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स. एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो स्पेसिफिक जहां पे ज्यादा आपको याद रखना है, फोकस देना है, दे आर दी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म and the development of the civilization. इस तरह के topics are very very important. In modern history, in-depth study is required. Modern history is that section of the paper जहां से you will get good number of questions. कई बार मतलब number of questions बहुत tentative होते हैं UPSC. This is the reason why I did not give you a chart कि इतने expected questions आते हैं. But फिर भी modern history को आपको in-depth पढ़ना जरूरी है. The ratio between ancient and modern history based questions is generally 30:70. 30% questions you'll get from ancient and 70% questions you'll get from modern history. But in between you'll have your art and culture questions also. Giving more time to history will help in GS paper 1 of mains. अगर आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से टाइम दोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको GS मेंस का जो पेपर है, GS 1 का जो पेपर है, GS का पेपर 1 जो है, सॉरी, उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है, राइट? तो हिस्ट्री का सेक्शन आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट कैन बी द सोर्सेज फॉर दिस? सोर्सेज आर योर एनसीईआरटी बुक्स फॉर योर स्ट्रॉन्ग बेस of classes 6th, 7th, 8th, 11th, 12th. These are important NCERTs जो आपको पढ़नी है अपने हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. डू नॉट इग्नोर दीज बुक्स, दीज आर गुड बुक्स. एनसीईआरटी को लेके जो एप्रीहेंशन है बच्चों में वो भी ये है कि पुरानी एनसीईआरटीज ले कि नई एनसीईआरटीज ले. I would say take any of the NCERTs. It can be your old NCERT if available, or the new NCERTs also will do the work. Not a hassle because उसके बाद आप कोई standard book पढ़ने ही वाले हो after the NCERTs. So what can be the standard book here? The Indian Struggle for Independence by Bipin Chandra or Modern History by Rajiv Ahir. This can be your modern history standard books. करेक्ट. एंशिएंट अगर आप बुक से अपना पढ़ लोगे, 11th वाली बुक पढ़ लोगे और 6th वाली बुक पढ़ लोगे तो आपका काफी कुछ उससे हो जाता है. अगर अदरवाइज फॉर एंशिएंट यू कैन ऑलवेज गो फॉर डी एन झा. डी एन झा इज वन बुक जो आप एंशिएंट के लिए रेफर कर सकते हो. देन यू हैव नितिन सिंघानिया फॉर योर आर्ट एंड कल्चर, वो आप एडिशनल पढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप ये बुक्स पढ़ रहे हो तो इससे आपका काफी काम चल जाता है. वो बुक आपको मेंस में ज्यादा हेल्प करेगी. But if you want, you can go for that book also. Next is your geography, both India and the world. For UPSC, this topic needs to be studied in a very targeted way. अब ये जो topic है, ये थोड़ा सा vast है. मतलब ये बहुत vast topic है. ये काफी
काफी वास्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. This topic also overlaps with ecology and environment part, right? Now, physical geography needs to be studied thoroughly. Physical geography आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़नी है. The concepts have to be clear. Chapters like your atmosphere, hydrosphere, lithosphere, geomorphology, earth, universe, ये बहुत बहुत अच्छे से prepare करने हैं. They have to be prepared really really well. देन इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे आपके डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, द नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स एंड सेंचुरीज, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, बोथ द नॉर्दर्न ड्रेनेज एंड द सदर्न ड्रेनेज सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द रिवर्स, where they start from, what kind of soil they get in, and all those things. The different shapes and the different structures these rivers create, all those things are very very important. Now, renewable and non-renewable sources of energy, transportation and communication is again important. Agriculture, the cropping pattern, irrigation, production, these are the most important topics that you have to do for your prelims minimum. So you can see this is a huge topic, right? Last but not the least, map should be thoroughly done. Map के बिना आप geography prepare नहीं कर सकते. You always have to be studying geography with the maps, right? Any atlas. Now what can be the sources? Sources is 8th to 12th standard की जो books है NCERT की, go through them. NCERT के अलावा I would say ICSE board की अगर आपको books मिल जाती हैं 9th 10th 11th 12th, they are also equally good. You can use those books also. Then you have your Leong. This book is specifically for your physical geography, right? Physical and human geography, this covers this section. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए माजिद हुसैन एंड महेश बरनवाल आर वेरी गुड बुक्स, यू कैन रेफर दीज बुक्स. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है वो, या एनी एटलस दैट यू फील लाइक इज कंफर्टेबल, बट ऑलवेज गो फॉर स्टूडेंट एटलस, राइट? Next topic is your ecology and environment. Now this topic specifically has been seen from last from 3, 4, 5 years, I would say. This has gained huge importance. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ये टॉपिक. और इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कवर होता है, इंपॉर्टेंट लॉज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशन, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, ये कवर हो जाते हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेज हैं, ट्रीटीज हैं, ये सब इसमें आ जाता है. उसके अलावा बेसिक फिनोमिना रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, राइट? इस तरह के टॉपिक्स, पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीजेस, उनके क्योर्स एंड ऑल दोज थिंग्स कम अंडर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. नाउ दिस टॉपिक स्पेसिफिकली इज लेस ऑफ स्टैटिक एंड मोर ऑफ डायनामिक. इस टॉपिक में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा. इसके लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं तो शंकर आईएएस की इकोलॉजी एनवायरमेंट आप पढ़ सकते हो, दिस इज गुड. अदरवाइज ये काफी कुछ इसका आपका कवर हो जाता है आपके ज्योग्राफी के साथ ही. प्लस आप अगर करंट अफेयर्स बहुत थरोली और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका वहां पर भी ये अच्छे से कवर हो जाता है. नेक्स्ट कम्स योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी स्पेसिफिकली, हमने देखा है कि केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है यूपीएससी. बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं केमिस्ट्री से. अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में भी एस्ट्रोनॉमी वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस दे पुट. बायो और जूलॉजी, इनका फिर भी कुछ वेटेज देखा जाता है साइंस टेक सेक्शन में ना. उसके अलावा स्पेस रिसर्च, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ये हमें हमेशा रेगुलरली नासा का हो या इसरो के सेक्शंस, इसरो के स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च हो, ये हमें अच्छे से सभी को कवर करते हुए चलना है, राइट? उसके अलावा आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज अगेन हैज गेन इंपॉर्टेंस. अगर हम देखा जाए पिछले कुछ टाइम से, जैसे कि लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं वो कवर होने जरूरी हैं. क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट थिंग्स, इंटरनेट लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, वीपीएन, एनएफसी, ये लगभग रेगुलरली पूछे जाते हैं, राइट? इन वन फॉर्म और दी अदर. बायो में ज्यादा फोकस जो होगा वो होगा आपके लाइफ साइंसेस वाले टॉपिक पे, तो वो सेक्शन आपको अच्छे से कवर करना है अपना. और इसके अलावा क्वेश्चंस ऑन ह्यूमन डिजीजेस भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, यूपीएससी में भी. नेक्स्ट इज योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हैं.
in the field of genetic engineering, nanotechnology, biotechnology, stem cells, robotics, etc. should be covered properly. This is important. Everything is important that I am telling you right here, but ये भी एक important section है. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप current affairs को बहुत ध्यान से पढ़ते हो for this particular section. What can be the sources? Is your basic NCERT and daily newspaper. This is what I was telling you, the current affairs and everything. Next comes your economics. Now for economics, I would say macroeconomics is very important. Microeconomics को आप skip कर सकते हो if you want, right? If you want to study, you can always study, but आप skip भी कर सकते हो because questions जो है ज़्यादातर macroeconomics से और current से ज़्यादा आते हैं. I would say dynamic section बहुत ज़्यादा, dynamic question ज़्यादा है यहाँ पर. ये dynamic section में cover किया जाता है economics को. Then fundamental principles should be understood properly. जो भी इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो आपको अच्छे से आने चाहिए. कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स बेस्ड ऑन नेशनल इनकम, योर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी एंड क्रेडिट कंट्रोल, लिक्विडिटी, मनी मार्केट, कैपिटल एंड कैपिटल मार्केट, योर बजटरी टर्म्स, पॉवर्टी, डेफिसिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये जनरली आस्क क्वेश्चंस है इस टॉपिक में से. आई होप आप लोग इसका नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा आप सबके लिए. और I'll try and attach the PDF with the video. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर चैप्टर्स की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली. एक हुआ आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. उसके अलावा टॉपिक्स जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रही है वो सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स के लिए. व्हाट कैन बी दी सोर्सेज? सोर्सेज आर योर 11th and 12th NCERT बुक्स. अलॉन्ग विद दैट इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इस बुक को पढ़ सकते हो. डेली न्यूज़पेपर का इकोनॉमिक सेक्शन आपको पढ़ना है. नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी. नाउ दिस इज वन टॉपिक विच इज relatively important and easy also. इस टॉपिक को आप प्री और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो. ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर इन दी बुक इज इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है इसमें आपको. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्किप एनी टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी, बिकॉज ये सेक्शन ऐसा है जो बहुत वेल डिफाइंड सेक्शन है, राइट, और कन्फाइंड भी है. और क्वेश्चंस जो है बोथ फैक्चुअल एंड एनालिटिकल दोनों हो सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दिस इज अ कंप्लीटली रियली हाई स्कोरिंग टॉपिक जहां आप 10 on 10 अचीव कर सकते हो प्री में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पंचायती राज, जुडिशियल सिस्टम, शेड्यूल्स जो हैं वो, आर्टिकल्स, सम वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ट्रिब्यूनल्स, इस तरह के मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आपको पॉलिटी में कवर करना है. और बहुत ही आसानी से हो जाता है, बस आपको बार बार रिवाइज करना होता है. व्हाट कैन बी दी सोर्सेज फॉर इंडियन पॉलिटी? सोर्सेज की बात करूंगी तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत. दिस इज अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. इसके अलावा आप चाहें तो DD बासु रेफर कर सकते हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक. इसके अलावा या बेयर एक्ट, अगर आप चाहते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल नॉलेज के लिए आप उसको ले सकते हो. अलॉन्ग विद योर न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स द करंट अफेयर्स. नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज IR, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना होता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से? ऑर्गेनाइजेशंस, मेंबर्स, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है. दे शुड बी गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंस. उसके अलावा योर लेटेस्ट समिट्स एंड सेमिनार्स अलॉन्ग विद योर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस जो भी साइन किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए इन दिस टॉपिक. Then your organization formed in recent past and organizations in which India is a member should be given more weightage. IR को कवर करने का तरीका क्या है कि आप इनकी जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं वहां से इसको पढ़िए. करेक्ट. स्टैटिक पोर्शन आपका, स्टैटिक इसको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी,
उसके अलावा बेटर है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाइए एंड देन स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विथ रेफरेंस टू दीज कॉन्टेक्स्ट. जो टॉपिक्स मैंने आपको दिया है ना, ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स, एस्टैब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, पर्पस एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एंटायर वीडियो, टाइम मैनेजमेंट. अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, तो आप कैसे पढ़ोगे? अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, आपको रिवीजन करना है, आपको अटेम्प्ट करना है अगले साल, तो कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट शुड बी मोर और लेस द सेम फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. सेट योर गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मंथली, वीकली या डेली टारगेट्स बनाओ. अपने लिए टारगेट सेट करो और उनको अचीव करने की कोशिश करो. डिवाइड योर द टाइम अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हर एग्जाम के हर टॉपिक की जो वेटेज है, वेटेज हमें बहुत ज्यादा मिल जाती है. आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स कैरी इक्वल वेटेज, लगभग, मोर और लेस, करेक्ट. उसके हिसाब से टाइम को डिवाइड करो, या आपको टॉपिक जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो आप जल्दी कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग, और जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है अकॉर्डिंगली. दिस हैज टू बी अ टेलर मेड थिंग फॉर यू. दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ऑल दी डिफरेंट स्टूडेंट्स. कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको इकोनॉमिक्स में कम टाइम लगेगा. कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको साइंस में कम टाइम लगेगा. तो अकॉर्डिंगली अरेंज एंड मैनेज योर टाइम. ऑलवेज मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट बाय हार्ट. हमेशा एक टाइम टेबल बनाकर चलो और उसको रेगुलर फॉलो करो. डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी फ्रीक्वेंटली. अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत फ्रीक्वेंटली भी ऑल्टर मत करते रहो. ऑलवेज गो फॉर डेली, वीकली एंड मंथली रिविजन. दिन के एंड में भी यू कैन रिवाइज व्हाट यू हैव डन. वीकली रिवीजन भी हो सकता है और मंथली रिवीजन भी आप करते हुए चलोगे, बिकॉज रिवीजन इन दिस प्रिपरेशन होल्ड्स द की. आप पढ़ते रहोगे, रिवाइज नहीं करोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. व्हाट इज बेटर इज रीड and revise, study and revise. It will help you in retention, also in the elimination and marking the correct answers and everything when it comes to the exam. Next is how to keep yourself motivated. Now this is something which regularly I've been asked about, how to keep oneself motivated about the exam. So there are few things that I have mentioned here. There are things again depending on the individual, बहुत subjective है. जो आपको लगता है कि आपको क्या करना है, accordingly should do. Daily think of the outcome you will get once you clear UPSC or IS exam. हमेशा उस outcome को दिमाग में रखो जो आपको that you'll have once you are through the exam, right? Attach a purpose to your preparation for UPSC. कोई purpose attach कर दो उस preparation के लिए, ताकि आप हमेशा motivated रहो to give your 100% and 120%. Whatever you study, learn with interest. कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको इंटरेस्ट से लर्न करो. Try to gain knowledge from all kinds of sources. बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है कि आप इंफॉर्मेशन लो अलग अलग सोर्सेज से, बहुत मन लगाकर उसको पढ़ो. Be observant and focused. Now this I personally believe is very very important. Be observant. Be observant about your surroundings. आपके आसपास क्या हो रहा है, and be focused. You should be real focused towards your goal. You can practice meditation also. It helps you in keeping a positive mindset all the ways. Last but not the least, understand the journey from selfish to selfless. अभी फिलहाल preparation में become selfish. This is what you want. This is your life's target. This is your life's main thing that you want. Then going toward the journey from selfish to selfless, where you can actually contribute to the society. You can work for the society, for the benefit of the society, and make a difference. So this has to be there in your mind, right? I hope this is going to help everyone. I have covered almost everything that was needed as a beginner's guide for UPSC. If you like the video, please like it, share, and also subscribe to the channel. Until next time, see you all. Bye.